This is lecture number 8, and we are starting with a new unit, which is unit number 4, externalities. This unit only has one chapter of externalities, that is chapter number 34 of variant. So this comes from variant. So now let's start. Here, let's first discuss the definition of externalities. What is an externalities? So whenever I'm defining an externality, I usually mean that actions of another agent are affecting my consumption or my production. So in this case, let's take the example that it's 3 a.m. in the night, right? And someone is playing loud music, due to which my sleep gets disturbed. Now, my sleep getting disturbed is not related to any action that I am doing. Neither uh, I was in the market where I asked the person to play music, right? So in this case, what is happening? The person who's consuming music is affecting my consumption. So the other person, due to his consumption or due to his production of music, my consumption is negatively getting affected. So this is an example of a negative externality. In this case, this is not a production externality, this is a consumption externality, meaning that my consumption is getting affected. It doesn't matter ki the person is producing or consuming. What matters is my consumption being affected or is my production? In this case, my consumption is getting affected. So in this case, this is a negative consumption externality. Another example, if my roommate lives with me and he smokes, now the roommate smoking is affecting my consumption, right? I have to consume smoke whether I want it or I don't want it. So in this case, it is another example of a negative externalities, right? So another example, fisheries there. Okay, we can delete this. This is an example of production externalities. Now, flowers planted by a neighbor. So my neighbor is planting a flower, he's making a garden. Because of that garden, I am getting to consume the fragrance of the flowers. I'm getting to consume the scenic beauty of the garden. So this is an example of consumption externality. Now, after consumption externality, let's move to production externality. In this case, what is happening? My production will get affected by the actions of the other person. So in this case, suppose I have a fishery which is located downstream a factory. Now, the fishery is doing nothing but producing fishes, but the firm is producing a lot of water pollution, water waste, due to which the water is getting polluted and my fisheries are getting affected. In this case, the fisheries are getting affected negatively. The production of fisheries is getting affected negatively by the because of the pollution by the factory. So this is again a case of negative production externality. Now let's discuss the case of a positive production externality. So now I have an orchard, apple orchard. Now next to the apple orchard, there is a beekeeper. So a lot of bees are there very nearby apple orchard. So now what happens every season when the apples grow, they need some pollination. Now we know that in science or whenever we talk about this plantation, the apple orchard, the trees, the plants, they need certain bees for pollination, right? It becomes easier. Either it happens in the air or it needs bees. If you're not aware of the example, you can go and give it a read. In this case, because of the beehives which are just next to my apple orchard, I will be benefited, because what will happen, the bees from that place will come to my apple orchard and pollinate my plants, my flowers. So in this case, it is a positive externality and positive production externality, because my production of apples is getting positively affected by the because of the beehives that are next to my apple orchard. And now in this both the cases, whenever we discussed till now, whenever we were talking about market, we discussed it with context of a market equilibrium, in the context of no externalities. Till now, what we discussed was that if there is a market equilibrium, it is Pareto efficient automatically. So all market equilibriums are Pareto efficient automatically. Or, but in this case,
when there are externalities, we cannot make this conclusion. So this conclusion that my market equilibrium will be Pareto efficient is not true in the presence of externalities. Now the problem with this is that there is no market for externalities, meaning that now if my roommate is smoking, now I have a problem with smoking. Now here we do not know that whether he allowed to smoke or not allowed to smoke. Suppose now the person is not allowed to smoke, right? But in this case, if we don't have a market for externalities, what will happen? He will not smoke, and I will be happy that he's not smoking. But suppose if there is a market for this externality, so in this case, I, as a non-smoker, tell the smoker that you do one thing, you smoke. Now, when you smoke, but when you smoke, please give me a portion of your money. I want money, you give me money, I will handle the smoke. So in this case, when trade is happening, so what trade is happening? There is a trade between smoke and money. So when this trade is happening, the trade between smoke and money, it is creating a market for externality, right? अभी तक there was no market for externality. Smoke का कोई trade नहीं हो रहा था. No one was selling smoke. No one was buying smoke, right? But now, and in that case, we cannot say that the market equilibrium was Pareto efficient whenever there is smoke in the market. But now here, when we say that you can trade smoke, so basically, there is a person who's playing loud music at 3 a.m. First thing first, we don't know who has the right to a peace environment. Suppose I have a right to a peace environment, right? In this case, the person can come to me and say, see, I have a party at my place. I need to play loud music. I know you would be bothered by this. Why not you take some money from me? So in this case, what is happening? We are exchanging the right to noise, right to a calm environment, right to a noise free environment with money. So there is trade happening. So whenever such kind of trade is possible, जब कोई externality का trade हो रहा है, smoke हो, pollution हो, आवाज हो, noise pollution हो, air pollution हो, जब नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का ट्रेड पॉसिबल है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट क्रिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली इस मार्केट में हम परेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय परेटो एफिशिएंट? परेटो एफिशिएंट मीनिंग both the parties cannot be made better off, more better off. So now let's apart from like the theory part, let's try to do it graphically and let's try to analyze कि इस वाले केस में how you will get the market equilibrium. Is it Pareto efficient or not, and why it is Pareto efficient when we allow for trade? So let's discuss. So we will start with a very simple example where A is a person who smokes and B is a person who likes clean air. So A is smoker. A is a smoker and B is a non-smoker. Now we will talk of two goods. First good is smoke. The other good is money. So these are the two goods that we have, smoke and money. So now in this case, when A is a smoker, say suppose this is the total amount of money in an economy, this line, this length of this line. And either A can have it or either B can have it. So suppose consider this endowment, W. तो इसमें क्या हो रहा है? A के पास कितना मनी है? इतना, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ. और B के पास कितना मनी है इस केस में? इतना, ऑलमोस्ट हाफ. ठीक है, से 40%, 60%. दिस इज से 40%, 60%. तो ये एंडाउमेंट हमें गिवन है इस केस में. एजवर्थ एनालिसिस से वी आर सॉल्विंग इट. बट लेट्स टॉक अबाउट स्मोक. अगर मैं स्मोक की एंडाउमेंट की बात करूं तो W पे A कितना स्मोक कर रहा है? A 0 अमाउंट स्मोक कर रहा है W पे. और B कितना अमाउंट स्मोक कर रहा है या उसके पास क्लीन एयर है? देखो B के पास स्मोक का जो लेंथ है वो यहां से यहां है. सो बेसिकली जब हम 0 से ऐसे वी मूव अप, द लेवल ऑफ स्मोक इन द इकोनॉमी इज राइजिंग. बट व्हेन ऑन द अदर हैंड जब हम इस पॉइंट से नीचे पॉइंट पे मूव करते हैं, यानी इस पॉइंट से यहां मूव करते हैं, सो द level of cleanliness in the air is rising and the level of smoke is falling. So it is vice versa. अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, स्मोक का क्वांटिटी बढ़ेगा. ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो स्मोक का क्वांटिटी कम होगा. तो ये सबसे नीचे मूव है, तो यानी इसमें हमारे पास मैक्सिमम क्लीन एयर है और इस पॉइंट पे हमारा नो स्मोक है. तो यानी इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया
कि दोनों के पास एंडाउमेंट तो 50-50 है या 40-60 है या कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ए के पास लीगल राइट्स नहीं है स्मोकिंग के। इन द इनिशियल एंडाउमेंट A cannot smoke, right? And B has the right to clean air. The A does not smoke. But now we know, क्या ये पॉइंट परेटो एफिशिएंट है W? द आंसर इज नॉट नेसेसरली। हमें पता है परेटो एफिशिएंट पॉइंट जब कन्वेक्स आईसीज होते हैं तो कैसा दिखता है? बेसिकली आईसीज जो होते हैं टेंजेंट होते हैं। अगर हम W पे आईसीज बनाएंगे दे वोंट बी टेंजेंट। तो दैट मीन्स W एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम ट्रेड पॉसिबल हो, ट्रेड मतलब you buy and sell smoke, right? You buy and sell clean air. So if this trade is possible, both the agents A and B can be made better off. So now what happened? They sit on a round table. They start negotiating. A says, "Ah, so you do, I'm very addicted to smoking." The smoker says, A, I'm very addicted to smoking. Why don't you give, take some of my money, take some of my money, give me only 20% wealth, but give me some amount of smoke. Give me this amount of smoke. So in this case, B agrees. B को क्या मिल रहा है इसमें? B के पास अगर 60% वेल्थ थी तो अब उसको 80% जो वेल्थ है, मनी है, वो मिल गया। और उसको, लेकिन बदले में उसको कुछ अमाउंट ऑफ स्मोक जो है वो सहनी पड़ेगी। पहले उसके पास पूरी क्लीन एयर थी, पर अब उसके पास इतनी क्लीन एयर है एंड देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ स्मोक दैट ही हैज टू बेयर। सो इन दिस केस देयर इज अ न्यू इक्विलिब्रियम एक्स। अब हम एक्स पे क्या देखते हैं? आईसी ऑफ ए एंड आईसी ऑफ बी आर टेंजेंट। दैट मीन्स दोनों ने म्यूचुअली डिस्कस कर कर ऐसा पॉइंट पे दोनों रीच कर गए हैं कि जहां से both of them cannot be made better off, meaning point X is Pareto efficient. I am removing this for better cleanliness. Just give me a minute. Right. So in this case X पे वो ट्रेड करके पहुंच गए हैं जो, और ये जो X है ये क्या है? परेटो एफिशिएंट पॉइंट है। तो W परेटो एफिशिएंट नहीं था, बट ट्रेड की वजह से क्या हो गया है कि ए ने थोड़ा अमाउंट ऑफ अपना वेल्थ देकर थोड़ा अमाउंट ऑफ स्मोक ले लिया है। तो यानी ए जो है W से बेटर ऑफ हो गया और बी भी W से बेटर ऑफ हो गया। तो जब दोनों बेटर ऑफ हैं तो यानी जो W था वो परेटो एफिशिएंट नहीं था, बट X इज परेटो एफिशिएंट। दैट मीन्स नो पार्टी कैन बी मेड बेटर ऑफ फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। सो इससे पता लगा कि कैसे एक्सटर्नैलिटीज के केस में अगर हम ट्रेड अलाउ करें तो बेटर आउटकम कैन बी रीच्ड। अब चलो दूसरा केस लेते हैं। सपोज बी हैज द राइट, सपोज ए हैज द राइट टू स्मोक। सो दैट मीन्स हम पॉइंट डब्ल्यू डैश पे, यानी कि ए के पास कितनी वेल्थ है इस केस में? से 40% एंड बी के पास 60% की वेल्थ है। लेकिन इस केस में A has the right to smoke. We are on this point, smoke का लेवल मैक्सिमम है, राइट? और क्लीन एयर का लेवल मिनिमम है। अब इस केस में what is happening? The non-smoker, it is becoming not bearable, non-bearable for him to tolerate the smoke. So what he says is, you take some wealth. वो एक को कहता है मुझसे थोड़ी सी वेल्थ आप ले लो और इसके बदले मुझे थोड़ी सी क्लीन एयर दे दो। तो यानी डब्ल्यू डैश जो था वो हमारा परेटो एफिशिएंट नहीं था, पर ये जो हमारा एक्स डैश है, दिस इज योर परेटो एफिशिएंट पॉइंट। इसमें दोनों ट्रेड करके एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर none of them can be made better off. So your x dash is also Pareto efficient. None of the parties can be made better off from the previous point, from this point. So this x dash again is Pareto efficient. So now again we know that ये दो तो इंडाउमेंट्स पॉसिबिलिटीज है। अब हो सकता है इंडाउमेंट कोई ये हो जाती डब्ल्यू डबल डैश, हो सकता है कोई इंडाउमेंट यहाँ हो जाती डब्ल्यू ट्रिपल डैश, या हो सकता है कोई इंडाउमेंट डब्ल्यू, ऐसे करके बहुत सारी इंडाउमेंट्स पॉसिबल हैं। तो हम बोलते हैं कि जितनी भी इंडाउमेंट्स पॉसिबल हैं, हर इंडाउमेंट्स के बाद वो क्या करेंगे, जरूरी नहीं है वो इंडाउमेंट्स जो है वो परेटो एफिशिएंट हो, बट उन इंडाउमेंट्स के बाद जब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो वो ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट दोज पॉइंट्स आर द बेस्ट पॉइंट्स फॉर देम, मीनिंग that no person can be made better off without making the other worse off, which is the definition of your contract curve. This is the same thing that I have just explained written. So different endowments would give different Pareto efficient points and hence a contract
कर्व. सो दैट मीन्स ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो हम एक परेटो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है इस केस में भी निकाल सकते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की तरह. बट अब पॉइंट ये है कि ये परेटो एफिशिएंट पॉइंट निकालने का तरीका क्या है. एक और तरीका है, हमें पता है कि जब भी हमें ये निकालना होता है हर इंडाउमेंट के लिए, सपोज वी हैव एन ऑक्शनर, राइट. सो नाउ व्हाट द ऑक्शनर विल डू, अगर हमारे पास ये W है तो वो क्या करेगा, एक ऐसा प्राइस लेवल सेट करेगा PX/PY. अच्छा, नाउ द थिंग इज कि PX/PY is basically the trade-off that the market requires for smoke and money, right? तो अगर मनी, बेसिकली अगर मनी ज्यादा कोई दे रहा है तो मनी देने के बाद कितनी स्मोक कम होगी, तो ये मार्केट कितना डिमांड करिए. तो अब ऑक्शनर ने सपोज करो कोई रैंडम प्राइस कोट करा, ठीक है. अब इस प्राइस पे हमें पता है W अफोर्डेबल है, राइट. जो भी कंज्यूमर है इस प्राइस पे W अफोर्ड कर सकता है. हमें पता है कोई भी जब प्राइस कोट होता है तो W उससे टच करता है यूजुअली, जब हमने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो. अब जब ये हम देखेंगे कि इस प्राइस पे ये हमारी नई बजट लाइन बन जाती है. अब हम ये देखते हैं कि इस पे ये जो एक्स है ये दोनों के आईसी जो है टेंजेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा PX/PY चूज करेगा ये ऑक्शनर, सच दैट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. डिमांड ऑफ व्हाट, स्मोक. तो बेसिकली एक इंसान जो डिमांड कर रहा है स्मोक की और दूसरा इंसान जो सप्लाई कर रहा है स्मोक की, वो इक्वल हो जाए. तो बेसिकली अगर कोई भी मार्केट है तो वो ऐसा एक प्राइस सेट करेगा और उस प्राइस पे जब ये प्राइस लाइन हमारे पास आ जाएगी तो दोनों ए और बी जो है वो डिमांड ऐसी करेंगे कि ये एक्स पॉइंट पे वो लोग डिमांड करेंगे जो ऑटोमेटिकली परेटो एफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें पता है दैट एवरी मार्केट इक्विलिब्रियम इज परेटो एफिशिएंट. तो एक तो तरीका ये है कि दोनों बैठकर एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट खुद ढूंढ ले ट्रेड का. और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है. एक ऑक्शनर को बिठाया जाता है, he sets the price such that demand is equal to supply and that point is the market equilibrium, and we know that all market equilibrium are Pareto efficient. So in this case we see that अब जो लेवल ऑफ एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस्ड है वो एफिशिएंट है. सी नाउ देयर आर कैविएट्स टू दिस. अब जितना एक्स और एक्स डैश को अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जो स्मोक है वो किस में ज्यादा प्रोड्यूस्ड है, एक्स डैश में ज्यादा प्रोड्यूस है एक्स से कंपेरेटिवली, राइट. बट नाउ इन दिस केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी. हम ये नहीं बात कर रहे कौन दोनों एजेंट्स में से ज्यादा बेटर ऑफ है. वी आर टॉकिंग ऑफ एफिशिएंसी. एंड व्हाट इज एफिशिएंसी, परेटो एफिशिएंसी. नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ. तो एक्स भी परेटो एफिशिएंट है, एक्स डैश भी परेटो एफिशिएंट है इस केस में. और हमें पता है कि इक्विटी की बात हम नहीं कर रहे, ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमने प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करे तो उससे हमारी एक्सटर्नैलिटी की जो प्रॉब्लम थी कि कौन प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कितनी स्मोक प्रोड्यूस होगी, ये जब हमने मार्केट क्रिएट करी. सो जब हमने प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन करा कि स्मोक की राइट किसके पास है किसके पास नहीं है, तो इट वाज पॉसिबल टू फाइंड अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट. So that means our outcome in this case, when property rights are defined, outcome is efficient. Right? So outcome is efficient. But now one point to note here is the outcome different in every circumstance? Yes. So अगर मेरी इनिशियल इंडाउमेंट W थी तब हमारी इकोनॉमी में स्मोक कितनी थी, इतनी. जब हमारी इनिशियल इंडाउमेंट W डैश थी तो हमारी इकोनॉमी में क्या स्मोक थी, इतनी. तो सॉरी, इतनी. सो हम देखते हैं कि हर इंडाउमेंट में जो लेवल ऑफ स्मोक है वो डिफरेंट है. But if you remember the Coase theorem, there was a time when we studied the Coase theorem. तो Coase theorem में हम बोलते थे, just a minute. Coase theorem में हम ये बोलते थे कि आउटकम जो होता है, the outcome is of externalities is same in every case. So for example, अगर endowment W है या W dash है, same amount of smoke should be produced if property rights are defined and if we allow for exchange, right? I will repeat that, but that is not happening. Just only thing you memorize here is that when you compare E and E dash, level of smoke is different in
different equilibrium points. Okay, just a takeaway, and now let's move forward. So now अभी तक हमने जो preferences assume करी वो well behaved function था, convexity हमने assume करी, but now we move to a very particular case of preferences, which is the quasi linear preferences. Now let's assume that agent A and agent B have quasi linear preferences. We will make this assumption. So let's start the discussion. So now, how do quasi-linear preferences look? So let me give you a brief of what we did in the last semester. This was the utility function. So suppose ये A का utility function है, B का utility function ये assume कर लेते हैं, right? So ये दो utility function assume करके let's solve it. So now in this case, let's find the MRS. तो अगर हम A का MRS निकालेंगे, so this will be it. How do we find the MRS? Del U by del x1 and del U by del x2. This is the MRS of A. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिर्फ x1 आता है, राइट? वी नो दैट क्वाजी लीनियर फंक्शन में MRS इज फंक्शन ऑफ ओनली द नॉन लीनियर गुड, नॉट द लीनियर वन. नाउ लेट्स सॉल्व इट फॉर कंज्यूमर बी. इसका क्या एज्यूम करा है हमने? So this is what we have assumed. MRS is equal to del u by del x1 del u by del x2. x1 के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको डिफरेंशिएट. So this is coming out to be this, and this is coming out to be this. Let me rub this one. Right. Now we know that this constraint also holds. मतलब x जितना consume करा A और उतना B, और ये total amount of endowment है economy में, right? So now this was what you find for this. What was the MRS of B that you have found? Okay, so let me correct this. Right. So now we know that Pareto efficiency क्या होती है? We know that when a point is Pareto efficient, MRS of A is equal to MRS of B. We know that this condition is followed when to find Pareto efficient point. So let's find out this. MRS को दोनों को इक्वेट करा तो हमारा आंसर आ गया इसमें. Let me solve again. So basically, we have a ratio of x1a to x2b. So what you can do is, ये हमारी एक रेशियो आ गई. Now you have the value for this. You can find so इस केस में x1b आ गया. So basically what we have here is and just to mention this, the good number one is your smoke. This is your smoke. And this is your money. यहाँ मूव करेंगे तो क्लीन एयर.
नाउ इन दिस केस व्हाट वी नोटिस वाज दैट जब हमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करा तो x1b क्या निकल रहा है, 4/5 ऑफ, और ये x1a क्या निकल रहा है, 1/5 ऑफ x बार. सो दैट मीन्स मनी की इंडाउमेंट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बट मेरा जो लेवल ऑफ स्मोक है इकोनॉमी में वो फिक्स रह रहा है. अब अगर हमने ये जब भी डेरिवेशन करी, इफ यू हैव नोटिस आई हैव नोवेयर यूज्ड मनी इनकम, आई हैव नोवेयर यूज कि किसके पास कितना मनी है. सो इसमें क्या हो रहा है, क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस में व्हेन प्रेफरेंसेस फॉर स्मोक गुड involving externality is quasi-linear, a fixed amount of smoke is produced in an economy. तो स्मोक का अमाउंट फिक्स होगा. अब ये मनी इनकम का अमाउंट कुछ भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि ए के पास इतना हो और बी के पास इतना हो, ए के पास कम हो. दिस कैन वैरी लाइक एनीथिंग along this line, but what remains the same is the level of smoke in the economy, no matter money income क्या है. और ये तब होता है जब preferences are क्वाजाई लीनियर. तो अगर इसमें हम परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स बनाएंगे, राइट, इफ वी ड्रॉ द परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स, वी नो दैट जब क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस होती हैं तो आईसीज आर वर्टिकल ट्रांसलेट्स ऑफ ईच अदर. सो इन दिस केस इफ यू मेक द, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पर जो टेंजेंसी का पॉइंट आएगा वो इसी लाइन पे आएगा. तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वो भी ऐसा ही दिखेगा इस केस में जब क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस है. नाउ लेट मी शो यू हाउ दे हैव डन इन द बुक. दे हैव डन इट विदाउट दिस एग्जांपल. Now, in the book, what they have done is they have taken money on the x-axis and smoke on the y-axis. तो money ऐसे और smoke ऐसे बढ़ता है. तो अब जब क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस होते हैं तो उस केस में स्मोक का क्वांटिटी फिक्स हो जाता है. तो नो मैटर किसके पास कितना मनी है, ये चेंज हो सकता है. तो अगर ए के पास इतना मनी है तो हमारा ये परेटो एफिशिएंट पॉइंट है, ए के पास इतना मनी है तो ये हमारा परेटो एफिशिएंट पॉइंट है. लेकिन लेवल ऑफ स्मोक, राइट, इज रिमेनिंग सेम. तो लेवल ऑफ स्मोक इकोनॉमी में कितना रहेगा, इतना, और लेवल ऑफ क्लीन एयर इकोनॉमी में कितना रहेगा, इतना. और ये कहाँ से आ रहा है, बाय सॉल्विंग दिस. So इसमें basically what is happening, the level of smoke, that is your x2, like x2 is independent of level of money. So x2 is fixed, it is given. So in this case of quasi-linear preferences, demand for smoke does not depend on the distribution of income. तो अगर हमारी जो इनकम है ए के पास ज्यादा है, बी के पास ज्यादा है, डज नॉट मैटर. टोटल इनकम जो है हमारी इकोनॉमी की फिक्स्ड है. अगर हम फिक्स एज्यूम करते हैं और स्मोक का लेवल हमारा 0 to 1 हम यूजुअली स्केल पे एज्यूम करते हैं, सो योर डिमांड फॉर स्मोक इज फिक्स्ड इन एन इकोनॉमी. नाउ दिस इज वेरी वेल कंसिस्टेंट विद द कोस्ट थ्योरम. कोस्ट थ्योरम क्या कहता है, कोस्ट थ्योरम ये कहता है कि जब हम एक बार प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर देते हैं, सो वंस Post theorem says that once property rights are defined, the amount of externality remains the same in the economy, no matter who has the legal
राइट्स। सो इन दिस केस ये जो सारे पॉइंट्स है ये मार्केट इक्विलिब्रियम के होंगे। तो सपोज करो इंडाउमेंट जो था वो ये था, राइट? इंडाउमेंट मनी इनकम बेसिकली किसके पास राइट्स थे? इसके पास क्लीन एयर के राइट्स थे जब हम यहाँ थे। तो अब क्या होगा इस केस में, जब फाइनल इक्विलिब्रियम होगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व में जब ये दोनों ट्रेड करेंगे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो इस केस में लेवल ऑफ स्मोक इकोनॉमी में इतना हो जाएगा। सपोज करो स्टार्ट करने के लिए इसके पास क्लीन एयर के राइट्स थे, राइट? इसके पास स्मोक के राइट थे। तो सपोज ये तुम्हारा इंडाउमेंट है, तो इस केस में व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम द परेटो एफिशिएंट पॉइंट। जब वो ट्रेड करेंगे तो वो इस पॉइंट पे आएंगे। ये आईसीज मैं रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, ऐसे नहीं बनेंगे। सो इस पॉइंट पे आएंगे तो जो ट्रेड करके वो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दे ट्रेड, सो लेवल ऑफ स्मोक इज फिक्स्ड। इस केस में क्या है, इसके पास इतनी मनी इनकम थी और इसके पास इतनी मनी इनकम थी, राइट? अब दोनों ट्रेड ऐसे करेंगे कि लेवल ऑफ क्लीन एयर इतना होगा और स्मोक इतना होगा। मनी इनकम कुछ भी हो सकती है, वी आर नॉट मेकिंग अ कंडीशन ऑन दिस। तो इस केस में कुछ भी इंडाउमेंट है, वी विल अल्टीमेटली एंड अप, जो हमने सॉल्व करा था न्यूमेरिकली, तो वी विल अल्टीमेटली एंड अप, क्या सॉल्व किया था, लेट मी हैव द वैल्यूज। अल्टीमेटली हमारी ये वैल्यूज स्मोक की इकोनॉमी में होने वाली है। दिस इज योर कोस थ्योरम। तो यानी हमारा जो कोस थ्योरम है वो कब सेटिस्फाइड होता है, जब हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं क्वाजाई लीनियर होती है, तब हमारा कोस थ्योरम सेटिस्फाइड होता है। अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि इससे पहले में हमने ये नोटिस देखा था कि जब इंडाउमेंट्स अलग थी तो लेवल ऑफ स्मोक इन द इकोनॉमी वाज डिफरेंट। बट दिस इज नॉट द केस when the preferences are quasi-linear. So when preferences are quasi-linear, cos theorem is satisfied. Why it is satisfied? Now let's discuss this. In case of a in case of quasi-linear preferences, now we know कि एक गुड ऐसा होता है और एक गुड लीनियर होता है। ठीक ठीक है। तो ये जो नॉन लीनियर गुड है, हमारा जो MRS है इज इक्वल टू PX/PY, वी नो दिस थिंग इज ट्रू, राइट? एंड हमें ये भी पता है MRS ऑफ A इज इक्वल टू MRS ऑफ B। अब इसमें क्या होता है, जब हम MRS निकालते हैं इस गुड का, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Y। जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ Y है तो यानी X का जो लेवल है वो इस वाली इक्वेशन से फिक्स हो जाता है। तो अब इस केस में इसका जो वैल्यू है वो, अगर सपोज इनकम बढ़ती है या घटती है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो Y पे हो जाता है। जब इनकम बढ़ती है या घटती है और उससे जो X और Y में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो इस केस में इनकम इफेक्ट ऑफ द नॉन लीनियर गुड, in case of this income effect of non-linear good, in this case what is this non-linear good? It is X, that is externality is 0. So there is no income effect of the non-linear good in this case. तो सारा जो इनकम इफेक्ट है वो Y पे आ जाएगा। यानी इस वाले केस में तो जो Y है वो ऑटोमेटिकली इनकम है। तो अगर इनकम किसी की बढ़े घटे, X की क्वांटिटी फिक्स रहती है, ये इक्वेशन फिक्स रहती है, एंड हेंस यू हैव द answer. So in this case, why it happens? Because in quasi-linear preferences, the income effect of non-linear good, which is the externality, is 0. So this finishes another topic. इसके बाद the next topic we have is, we will take an example in which what we will do is, हम एक स्टील फैक्ट्री एज्यूम करेंगे, ठीक है? अब स्टील फैक्ट्री स्टील भी प्रोड्यूस करती है और पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस करती है। पॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है? और एक दूसरी फर्म है फिशरी, जो फिशेस प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब स्टील फैक्ट्री स्टील प्रोड्यूस करती है तो उसके साथ साथ वो जब पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है उससे उसकी कॉस्ट कम होती है। यू सी दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट स्टील की प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जब एक्स बढ़ेगा तो उससे उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो यानी उसके लिए फायदा है कि अगर वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करके स्टील प्रोड्यूस करे तो उसको फायदा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फिशरी की बात करूं, जैसे ही पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, नाउ पॉल्यूशन इज नॉट प्रोड्यूस बाय द फिशरी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो फिशरी के लिए अच्छी बात नहीं है कि पॉल्यूशन हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। सो अब इस केस में
Now, this pollution is an externality, negative externality for the fishery. Now, what the steel firm will do in this case? It will maximize this function. That means किस प्राइस पे वो स्टील बेच रही है? PS इंटू एस, यानी जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करती है स्टील के सेल के लिए, माइनस द कॉस्ट ऑफ द स्टील फर्म. नाउ वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ द स्टील फर्म इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड एक्स. तो यानी कि जब आप स्टील ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन जब आप स्टील ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे हमारी जो कॉस्ट है स्टील की वो कम होगी. अब फिशरी क्या मैक्सिमाइज करेगी? फिशरी क्या, उसके प्रॉफिट्स ही हैं, राइट? नाउ फिशरी के जो प्रॉफिट्स है दैट आर ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एफ एंड एक्स. तो नेचुरली अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो ये बढ़ेगी, लेकिन इस केस में अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. अब इसको सॉल्व करने के लिए जब स्टील फैक्ट्री चूज कर रही है तो वो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करेगी, डेरिवेट वन विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि कितना स्टील प्रोड्यूस करना है. तो यहां पर जब वो डेरिवेट करती है तो फर्स्ट थिंग इट हैज इज पीएस, राइट? दैट इज द प्राइस ऑफ स्टील फंक्शन. इट इज अज्यूम टू बी परफेक्ट कंपटीशन. पीएस एस वन हो जाएगा, और अब इसको डेरिवेट करेंगे. सो ये पार्शियल डेरिवेशन है तो इस वजह से एक्स वाला टर्म नहीं है. अब स्टील फैक्ट्री दूसरा, उसके पास ये भी चॉइस है कि वो कितना पॉल्यूशन जो है वो चूज कर सकती है. तो जैसे वो स्टील की प्रोडक्शन बढ़ा रही है तो वो एक्स को भी चूज कर रही है. एक्स इज ऑल्सो अ चॉइस फैक्टर. सो व्हाट वी सी इज दैट इन दिस केस जब वो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करती है, जब वो, तो देन वी गेट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एक्स की टर्म नहीं है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो. उसके बाद माइनस ये वाली टर्म को वो डिफ्रेंशिएट करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज योर डेल्टा सी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. और अगर हम इसको यहाँ पर मूव करते हैं राइट हैंड साइड तो इट इज इक्वल टू जीरो. सो हमारे पास इस टाइम पे इसकी दो कंडीशंस आती हैं. पहली कंडीशन है पी एस इज इक्वल टू डेल्टा सी एस. दूसरी कंडीशन है जीरो इज इक्वल टू डेल्टा सी एस अपॉन डेल्टा एक्स, राइट? सो यानी कि दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन एंड दिस इज द प्राइस ऑफ स्टील. सो वो स्टील कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब ये कंडीशन पूरी होगी. और अब वो पॉल्यूशन कब तक प्रोड्यूस करेगा? दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज एक्चुअली बेनिफिट. तो जब वो एक्स ज्यादा कर रहा है तो कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, राइट? तो ये जब तक वो तब तक वो करता रहेगा, पोल्यूशन एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक उसका जो बेनिफिट वो जो उससे डिराइव करता है वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है? सो अब क्या होता है कि जब एक्स वो बढ़ाता है तो इनिशियली क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, राइट? तो उसको एक बेनिफिट होगा. अब क्या होगा कि धीरे धीरे जब वो पॉल्यूशन और बढ़ाएगा तो उसकी कॉस्ट और कम होगी, लेकिन जिस रेट पे वो कॉस्ट कम हो रही है तो पहले क्या होगा, उसकी कॉस्ट सपोज करो 15 से कम हो गई, ठीक है, पॉल्यूशन 1 से 2 करने में. अब वो पॉल्यूशन जब 2 से 3 करेगा तो अब उसकी कॉस्ट सिर्फ 10 से कम होगी. तो अब क्या हो रहा है, पहले उसकी कॉस्ट 15 से कम हो गई, बाद में उसकी कॉस्ट अब कम से कम हो रही है. अब जैसे जैसे वो और बढ़ाएगा, सपोज वो 3 से 4 कर देगा तो अब उसकी कॉस्ट सिर्फ 5 से कम हो रही है. फिर जब वो 4 से 5 करेगा तो उसकी कॉस्ट अब कम ही नहीं, एक टाइम पे कम होना बंद हो जाएगी. ये थोड़ी ना पॉल्यूशन करी जा रहा है करी जा रहा है तो कॉस्ट हमेशा कम होगी. तो ये जो रिटर्न्स है, ये अगर आप देखो इसका एब्सोल्यूट ले लो, ये जो बेनिफिट्स हैं तो एक तरह से ये क्या है, ये डिमिनिशिंग है. तो एक टाइम पे जब वो जीरो हो जाएगा तो इस केस में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा पॉल्यूशन के? 5 यूनिट्स, राइट? तो जब मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम पॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो अंटिल देन, और वो जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू पीएस, दिस इज अ जनरल परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन दिस. तो ये था स्टील का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब चलो देखते हैं फिशरी के केस में क्या होता है. फिशरी में नॉर्मल ये आएगा. देखो फिशरी का कोई कंट्रोल नहीं है एक्स को बढ़ाने में या घटाने में, तो यानी सिर्फ एक यही कंडीशन है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते. अब इससे हम देखते हैं कि जो स्टील फर्म है वो नहीं देखती कि फिशरी कैसे इफेक्ट हो रही है, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि जो एक्स बढ़ाने से, एक्स जो वो फालतू प्रोड्यूस कर रहा है उससे फिशरी की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है पॉल्यूशन से. सो दिस इज अ सोशल कॉस्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन. तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं. स्टील फर्म एक प्राइवेट कॉस्ट है एक्स बढ़ाने की, उसको जो बेनिफिट है. दूसरा एक सोशल कॉस्ट है जो वो इग्नोर कर रहा है कि एक्स बढ़ाने से फिशरी के प्रॉफिट्स भी तो कम हो रहे हैं.
तो ये वाली जो सोशल कॉस्ट है जो वो डैमेज कर रहा है फिशरी को, वो तो इग्नोर कर रहा है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो अब क्या होता है इस केस में, हम बोलते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉट एफिशिएंट। Why? Because we say that both the agents can be made better off. अगर ये सोशल कॉस्ट को ध्यान रखे और ये फिशरी का ध्यान रखे, तो बोथ द एजेंट्स कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। लेकिन ये कैसे करा जाए? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, फिशरी प्लस स्टील, हम इन दोनों फर्म्स को कहेंगे आप दोनों साथ बैठो और एक एग्रीमेंट करो जिसमें आप साथ में प्रोडक्शन करेंगे। आप दोनों एक ही फर्म है, आप दोनों स्टील भी प्रोड्यूस करेंगे, आप दोनों फिशरी भी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इस केस में उसका प्रॉफिट फंक्शन क्या दिखेगा, पीएफ इंटू एस प्लस पीएफ इंटू एफ। मतलब कि अब वो जो फिशरी सेल करेगा उसका पैसा भी उसको मिलेगा, माइनस सी एस माइनस सी एफ, राइट, दैट इज अ कॉस्ट फॉर स्टील एंड दैट इज अ कॉस्ट फॉर फिशरी। अब जब वो इक्वेट करेगा तो यहाँ पर अगेन एक कंडीशन आएगी। अब वो ये भी चूज कर रहा है कि वो कितना फिश जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो ये दूसरी कंडीशन आएगी। अब जब उसको एक्स चूज करना है तो वो इस पूरे प्रॉफिट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। तो जब वो डिफरेंशिएट करने चलेगा तो यहाँ पर तो कोई एक्स की टर्म नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, ये नेक्स्ट भी जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट ये वाला जो टर्म है यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डेल्टा सी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें माइनस माइनस दोनों को, माइनस यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा दोनों को कॉमन लेकर। तो हम ये देखते हैं कि फाइनली पॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन, राइट। तो पहले पॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आ रही थी, पहले पॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ रही थी, ये जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही थी ये इज इक्वल टू जीरो, जिससे हमारे पास एक एक्स स्टार की वैल्यू आ रही थी। अब क्या हो रहा है, हमारी जो न्यू कंडीशन है वो ये है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ये इसको हमने कैसे डिफाइन करा है, एक्स बढ़ाने से कॉस्ट स्टील फर्म की कितनी बढ़ती है, ये घटती है, ठीक है। अब जो हमारी न्यू कंडीशन है ये है, सो इस केस में अब क्या हो रहा है कि इज इक्वल टू जीरो इफ यू कैन सी। तो अब जो कंडीशन है वो बदल गई है, पहले हमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट कराना था स्टील की जीरो, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टील, बेसिकली अगर हम एक्स बढ़ाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, तो हमारी जो स्टील की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिस अमाउंट से बढ़ी वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टील। लेकिन एक्स बढ़ाने से हमारी, सॉरी, ये कम हो जाएगी। तो किस अमाउंट से कम हुई, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टील है, माइनस ये कम हो रही है। अब किस अमाउंट से फिशरी की कॉस्ट बढ़ी, एक्स बढ़ाने से फिशरी की कॉस्ट बढ़ी, वो ये टर्म। तो यानी आपने जब एक्स बढ़ाया तो दो चीजें हो रही हैं, एक स्टील की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, और एक जो फिशरी की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। यहां पर सिर्फ एक चीज थी, जब आप एक्स बढ़ा रहे थे तो कॉस्ट कम हो रही थी, यहाँ पर एक्स बढ़ाने से कॉस्ट जो है फिशरी की वो बढ़ भी रही है। और अब फिशरी आपकी ही है, यू आर द ओनर ऑफ द फिशरी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फिशरी, सो यू वुड इक्वेट दिस कंडीशन। सो नाउ लेट्स सी कि एक्स जो होगा, पॉल्यूशन आप इस केस में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या इस केस। नाउ इन दिस केस व्हाट यू डू इज यू शिफ्ट ये वाले टर्म को, जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, राइट, माइनस एम सी एस इज इक्वल टू एम सी एफ। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन व्हाट आर दीज टर्म्स। सो जब हमने एक्स बढ़ाया तो हमारी फिशरी की कॉस्ट बढ़ गई, किस अमाउंट से बढ़ गई, ये मार्जिनल यूनिट। जब हमने एक्स बढ़ाया तो हमारी स्टील की कॉस्ट कम हो गई, किस अमाउंट से बढ़ी, कम हुई इस अमाउंट से, ठीक है। और यहाँ एक माइनस भी है। So now let's try to draw this. Now there are certain assumptions on these curves. Let's try to have those assumptions.
उसको समझने के लिए हम ये टेबल समझते हैं थोड़ा. दिस टेबल इज नॉट इन द रीडिंग्स. वी आर एक्सप्लेनिंग दिस एक्स टेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज डायग्राम्स विदाउट द टेबल. देखो, जब एक्स बढ़ा 1 2 3, अब इस केस में हम दो चीज तीन चीजें निकालेंगे. एक ये, इसका माइनस, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, तो इसका माइनस, और ये. तो जब एक्स हमारा 0 से 1 हुआ तो हम ये देखते हैं कि जो स्टील की कॉस्ट है वो कम हो गई. कितने से? 15 से. लेकिन जब हमने अपना पॉल्यूशन बढ़ाया तो हमारी फिशरी की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई 1 से. उसके बाद जब हमने अपना पॉल्यूशन दोबारा बढ़ाया 1 से 2 से, तो हमारी जो स्टील की जो कॉस्ट है वो अब क्या हो गई? फिर से कम हो गई, लेकिन इस बार -10 से कम हुई. पहले तो -15 से कम हुई थी. हमें पता है कि ये डिक्रीजिंग रेट पे होती है, तो ये -10 से. अब क्या हुआ? जब हमने एक्स बढ़ाया तो हमारा जो फिशरी का कॉस्ट थी वो कितने से बढ़ गई? पहले सिर्फ 1 से बढ़ी थी, अब 3 से हमारी कॉस्ट बढ़ गई. ये कॉस्ट में प्लस हुआ है, MCF. उसके बाद जब हमने पॉल्यूशन 2 से 3 करा तो हमने ये देखा कि हमारी जो स्टील की कॉस्ट है वो कम हुई, लेकिन इस बार सिर्फ 6 से कम हुई. पहले कितने से कम हुई थी? 15, 10, फिर 6. फिर हमने ये देखा जब हमारा एक्स बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा, तो हमारा जो फिशरी की कॉस्ट थी वो बढ़ गई. कितने से बढ़ी? 6 से. पहले सिर्फ 3 से बढ़ी थी, अब और भी ज्यादा. तो दैट मीन्स जो फिशरी की कॉस्ट है एक्स बढ़ाने से, इट इज इंक्रीजिंग. द टोटल कॉस्ट ऑफ फिशरी इज इंक्रीजिंग at a increasing rate with respect to x. तो ये जो MCF कर्व है फिशरी का, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ऑन द अदर हैंड, अब हमारे पास देखो MCX नहीं है, हमारे पास माइनस ऑफ MCX है, तो हम क्या कर लेंगे? इसका माइनस ले लेंगे, राइट? तो ये 15 10 6, तो हम क्या देखते हैं, जब हम इसका माइनस लेते हैं तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा. यानी कि अब क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील इज डिक्रीजिंग, मतलब बट एट डिक्रीजिंग रेट. तो ये हमारा माइनस वाला कर्व ऐसा बनेगा. अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों इक्वल कहाँ है. जब हमने डेरिवेशन करी थी, मैथमेटिकली सॉल्व करा था, तो दे आर इक्वल एट दिस. तो हमारी लेवल ऑफ पॉल्यूशन कितना होगा? इसको हम बोलते हैं एक्स हैट. इसको हम एक्स स्टार नहीं बोलेंगे, एक्स हैट बोलेंगे. तो जब दोनों फर्म्स मिल जाती हैं तो वो कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, ये कंडीशन ये. लेकिन अब हमें पता है जब सिर्फ एक सिंगल फर्म थी तो वो कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही थी, इसको, राइट? इसकी जगह हम माइनस भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यानी वो इतना पॉल्यूशन, जब एक कोई सिंगल फर्म थी तो वो इतना पॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी. तो दिस इज योर एक्स स्टार. तो अब किस केस में ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा था? जब वो दोनों मिल गई या जब वो अकेले थे? जब वो अकेली थी. तो जब वो अकेली है तो वो एक्स स्टार पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, और जब दो फर्म्स फिशरी और स्टील मिल गई तो वो कितना प्रोड्यूस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करिए? एक्स हैट. एंड एक्स हैट इज लेस देन एक्स स्टार. सो व्हाट वी सी इज, बाय इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी, दोनों जो फर्म्स हैं वो मिलकर जब रेवेन्यू शेयर करिए तो वो कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि अब स्टील फर्म की दो कॉस्ट है, एक जो फिशरी का प्रॉफिट कम हो रहा है और एक जो उसका अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो दोनों को वो बैलेंस करके चलती है और कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है. अब क्या होगा? जब वो एक्स हैट प्रोड्यूस करेगी, अब जो उसका फाइनल कंबाइंड प्रॉफिट है इसमें से कुछ वो फिशरी को देगा, कुछ वो अपने पास रखेगा स्टील फर्म. अब देखो दो केस है. जब वो एक्स स्टार प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर एक्स हैट है ये, जब वो एक्स स्टार प्रोड्यूस कर रहा है यानी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो वो उसका प्रॉफिट पाई 1 है, ठीक है. जब वो एक्स हैट प्रोड्यूस कर रहा है तो अब क्या होगा? जब प्रॉफिट्स डिवाइड होगा तो स्टील फर्म को कुछ प्रॉफिट्स मिलेगा, पाई 2, है ना. फिशरी फिशरी वाले को तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इससे तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि अब पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट, अब बात ये, इसको जितना प्रॉफिट मिलेगा ये कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? सो अब इस केस में हम ये कहते हैं जब एक्स स्टार प्रोड्यूस हो रहा है तो इस केस में पाई 1 स्टील फर्म का प्रॉफिट है और पाई 1 फिशरी का प्रॉफिट है, ऊपर है फॉर ये. इस केस में जब एक्स ये प्रोड्यूस होता है तो दोनों फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं? तो अगर जब ये वाला आउटकम प्रोड्यूस होता है यानी कि दोनों जब मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इन दोनों प्रॉफिट्स का जो सम है
दैट इज, यानी कि इंटरनलाइज करने के बाद ये अगर ज्यादा है तो यानी दोनों के लिए फायदा है, क्योंकि जब हमारे पास सम ज्यादा हो गया तो देखो जैसे डिविजन करें वो तो चेंज हो सकता है कि फिशरी कितना ले, स्टील फर्म कितना ले, क्योंकि फिशरी को तो पहले ही उसका प्रॉफिट तो पहले ही कम हो रहा था ना, पॉल्यूशन, ही हैड नो कंट्रोल ओवर द पॉल्यूशन। सो इन दैट केस अब उसका प्रॉफिट अगर उसको पहले जितना भी मिले तब भी वो वेल ऑफ है, लेकिन अगर दोनों का सम बढ़ जाता है तो यानी ये जो आउटकम है, ये जो है हमारा, हम इसको बोलते हैं internalizing the externality is Pareto efficient, and not internalizing the uh, externality and producing X star is not Pareto efficient in this case. So ये फर्स्ट सॉल्यूशन था हमारा एक्सटर्नैलिटीज का। नाउ सेकंड सॉल्यूशन, इससे क्या हो रहा है, इससे फाइनली एक्स एक्स हैड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? और हमारे जो दोनों कंबाइंड प्रॉफिट्स हैं स्टील के और फिशरी के, एक्स दिस बढ़ने से वो बढ़ जाएंगे कंबाइंड प्रॉफिट। सो हमारा ये जो पॉइंट है ये परेटो एफिशिएंट है। व्हाई नाउ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्जिनल डैमेज टू द सोसाइटी। अब ये एक सॉल्यूशन है इंटरनलाइजिंग, हमारे पास और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन इज पिगोवियन टैक्स। सो लेट्स डिस्कस दिस सॉल्यूशन। सो नाउ सपोज ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इस वाले को देखो यहाँ पर, इसके बाद माइनस टी एक्स है। पिगोवियन टैक्स का मतलब क्या है कि अब हम स्टील फर्म को बोलेंगे कि यू डोंट हैव एनी राइट टू प्रोड्यूस फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स दैट यू प्रोड्यूस, फॉर एवरी लेवल ऑफ पॉल्यूशन दैट यू प्रोड्यूस यू विल हैव टू पे अ टैक्स ऑफ टी अमाउंट। सो यानी उसके जो कॉस्ट है उसमें ये चीज ऐड हो जाएगी और प्रॉफिट्स में से ये चीज कट जाएगी। इस केस में जब हम x के डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये जीरो की बजाय यहाँ पर एक माइनस टी है, क्योंकि इसके साथ एक x भी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू कंडीशन है। अब गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि वो टी की वैल्यू यानी वो कितना टैक्स रेट कलेक्ट करेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जितना फिशरी को डैमेज हो रहा है, ठीक है, उतना टी सेट कर देती है। और हमारे पुराने वाले केस में हम क्या करती है, गवर्नमेंट सपोज ये टैक्स रेट सेट कर दे, इसको अभी के लिए गिवन ले लो, ठीक है, दैट इज द मार्जिनल डैमेज टू द फिशरी। जब हम ये वाली इक्वेशन को टी वाले में इसमें पुट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी हैव। द आंसर दैट वी हैव इज माइनस टी। ये उसने सेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमने कुछ नहीं करा, हमने टी की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में लिखी है। इन दिस केस माइनस माइनस आप कॉमन ले लो, अगर हम ये देखें दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द स्टील फॉर्म प्लस दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फिशरी इज इक्वल टू जीरो। Isn't this condition same as internalizing the externality? Yes. So हम ये देखते हैं कि जब हम टैक्स भी लगाते हैं तो हमारी सेम कंडीशन जो है वो अचीव हो जाती है, प्रोवाइडेड हम टैक्स कितना लगाते हैं इतना। और यहाँ पर जब हम टैक्स लगाएंगे तो एफ डैश और एक्स बार की वैल्यू कितनी लेंगे, हैट। हैट मतलब जब हमने इंटरनलाइज करी एक्सटर्नैलिटी तब कितना, मतलब बेसिकली द मार्जिनल डैमेज एट व्हाट वैल्यूज एट दीज वैल्यूज। केस नंबर थ्री, अब ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, टैक्स लगा दो। केस नंबर थ्री है कि फिशरी को राइट दे दो कि आपके पास राइट है क्लियर वाटर का। अब क्या होगा, दोनों फिशरी और स्टील जो है वो बार्गेन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि फिशरी कहेगी कि आप पॉल्यूट ही मत करो और स्टील फर्म जो है वो बंद हो जाएगी, नहीं। फिशरी विल एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। और अब क्या करेगी फिशरी, स्टील फर्म को कहेगी कि यू पॉल्यूट बट मुझे थोड़े आप पैसे दे दो। वो कहेगी मुझे क्यों दे दो, ठीक है। अब सिमिलरली फिशरी कितना क्यू सेटअप करेगी, यहाँ पर सॉरी दिस इज योर पी एस, राइट, फिशरी ये क्यू सेटअप करेगी। तो यानी वो अपना ये सेम है, ये जो क्यू था और टी था वो सेम था। अब आप अगर ये वाला क्यू पुट कर दो इस वाले फंक्शन में, ठीक है, राइट, जब वो डिफरेंशिएट करती है तो यू विल गेट द सेम कंडीशन। यू कैन सी व्हाट इज दिस कंडीशन, माइनस ऑफ एमसीएस
दिस इज द सेम इंटरनलाइजिंग वाला कंडीशन. लेट्स डी सी क्यू की जगह यहाँ हम ये लिख रहे हैं, जैसे हमने टी की जगह रखा था. अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला टर्म क्यू रह जाएगी और ये एमसी एक्स रह जाएगी. सो दिस इज व्हाट यू गेट. अब फोर्थ सॉल्यूशन में राइट जो है वो स्टील मिल को दे दो, यानी स्टील मिल को राइट है. इस वाले केस में स्टील मिल ना तो टैक्स देगी ना तो ब्राइब करेगी, फिशरी को कुछ पेमेंट नहीं देगी. इस केस में स्टील फर्म को फिशरी पैसे देगी. फिशरी कहती है आप मुझसे क्यों ले लो, ठीक है. सो नाउ स्टील फर्म के पास राइट है कि वो एक्स बार पॉल्यूशन कर सकती है, ठीक है. तो अगर फिशरी कहती है अगर आप एक्स बार से पॉल्यूशन एक्स करोगे तो मैं हर यूनिट पे आपको क्यू दूंगी. तो फिशरी उसको एक पेमेंट देती है फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन. इन दिस केस इफ यू डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में दिस वुड बी द आंसर. नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज द आंसर. अब इस केस में क्वेश्चन अगेन वही है कि क्यू क्या सेट करें. अब इस केस में किसको डिसाइड करना है, क्यू. फिशरी को डिसाइड करना है क्यू. अगेन फिशरी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी विद रिस्पेक्ट टू क्यू. तो वो क्यू कितना देना चाह रही है, क्यू वो अपने मार्जिनल डैमेज जितना देना चाह रही है. अब नाउ व्हाट यू डू इज पुट क्यू इन स्टार. So you put this, you again get the same condition. You again get the same condition. So हम ये देखते हैं कि हमने प्रॉपर्टी राइट्स किसी को भी दी. हमने सबसे पहले केस में इंटरनलाइज करा सॉल्यूशन के लिए, हमने टैक्स लगाया, हमने प्रॉपर्टी राइट्स फिशरी को दी, हमने प्रॉपर्टी राइट्स स्टील फर्म को दी. तो हमने कोई भी केस करा तो हमारे पास सेम आउटकम आया, यानी लेवल ऑफ पॉल्यूशन फाइनली एक्स हैट हमारा प्रोड्यूस हुआ. सो दैट मीन्स सोशल आउटकम ऑफ पॉल्यूशन इज सेम इन ऑल द केसेस. कोई भी सॉल्यूशन है हमारा आंसर सेम रहेगा, राइट. सो दिस फिनिशेज आर वेरी गुड एग्जाम्पल. इसका जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is whenever we write there are chances that we make little errors in the notations and everything. So best part is for the writing part of this, refer to your readings. The explanation is pretty clear. For understanding that you can refer to the lectures, but in the readings when they write, sometimes they write x hat, sometimes they write x star. So please pay attention, every term has a big meaning attached. Don't make the error of shift like changing x hat to x star to x. Don't make that error. Be very careful with the notation. Every notation has a specific significance. Now the other part of the chapter is your market signals, and basically the major part is tragedy of commons that we discuss in the next lecture. That is your lecture number 9. So this finishes your lecture number 8. Rest of the chapter we'll do in the lecture number 9. Thank you so much.